So, hi everyone. Today we are going to continue the Contract Act. Okay. So, in the last class, we have completed about the contingent contracts. So, from section 31 onwards, we have already studied what are the nature of the contingent contract and what do we understand by the contingent contract and so on. Okay. So, when talking about the contingent contracts, then we must have looking upon certain situations like what do we understand by the contingent contract. Okay, so when we're talking about the nature of the contingent contract, that is must be about contractual in nature, that must be somehow contradictory to each other. So I hope our intern is here, Isika Jha. Okay, Isika, so I hope you are here. So I think we have in the last session I have taken with you. I have completed till section 30, and in the today's session I am going to continue from section 31 onwards. Open the book Indian Contract Act Bear Act open करो. सेक्शन 31 से शुरू कर रही हूँ, वहां से कंटिन्यू करो. ओके, और जहां पे भी समझना आएगा या फिर इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज और क्वेश्चन, just unmute yourself and you can ask me, or else you can, if you want, you can just ask your question in the chat box. Okay. Okay. Okay, done. Sure. So we are going to continue from the section 31 onwards, which is about the contingent contract. Okay, so when we're reading about the section 31, then we can understand that it speaks about a contingent contract is a contract to do or not to do about something, and it exactly indicates about the happening or non-happening upon of certain events. For example, I'll tell you that I am going to pay 10,000 rupees if your house is being burnt. अगर आपका घर कभी जल जाता है, then I am going to pay you 10,000 rupees. So here the amount of the contract we have signed, that I am going to pay you 10,000 of the rupees, or I am going to pay you 20,000 of the rupees, whatever the amount may be, that basically depends upon the happening of certain event. And what is the event? The event is burning of the house. अगर घर जल जाता है, अगर आपके घर को किसी भी नुकसान होता है, तभी मैं आपको पैसा दूंगा या फिर मैं आपको पैसा दूंगी. कितना है? 10,000 या 20,000, जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन द अनदर ऑकरिंग ऑफ द इवेंट. कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा है कि वहां पे दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ टैली कर रहा है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि 10,000 रुपया दूंगी. दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ऐसा हुआ तो, या फिर अगर ऐसा ना हुआ तो. सो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट यहाँ पे डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा. दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. And this kind of the contract is called the contingent contract, which is described under section 31 of the Indian Contract Act. And थोड़ा पीछे जाती हूँ, like I would like to have a small recap जो कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे. जहाँ पे हम बात किए थे सेक्शन 26 के बारे में, जैसे सेक्शन 26, 27, 28 एंड 30, दीज आर द मेजर सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसको भी थोड़ा देख लेते हैं पहले, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले. सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था कि agreement in restraint of the marriage is void. That means if any kind of the agreement which is restraining any kind of the marriage, that is void in nature. That means according to the Indian Constitution, all of we have the right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty, that is defined under section, right to life and personal liberty has been defined under article 21 of the Indian Constitution, जो कि ये बोलता है कि every citizen has the right and liberty to live his life according to his choices. हमको खुद के पसंद से किसी को भी शादी करना ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है. एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मैरिज कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड upon any kind of the caste, religion or certain basis. For example, if I am a Hindu and I want to marry a Christian person, then that kind of marriage is not prohibited under the Indian Contract Act or Indian law.
anyhow it is not prohibited. Marriage is allowed between all kind of person, but there is a restriction over there that is not allowed between the sapinda relationships or between the own blood connections. For example, I cannot marry my brother. In the Muslim law, there are certain exceptions, but when you are coming to the Hindu law, Hindu marriage act, there are certain relations upon like father, brother, sister. In these relations, you cannot get married to another person, right? So in these cases, the marriage is void. But when we are talking about any kind of the contract which is restricting any kind of the marriage, that is void in nature. That means, for example, I am signing a contract with you. मैं आपको किसी के साथ मैं आपके साथ ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप उनसे शादी नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि अगर आप जिंदगी भर शादी ना करके ऐसे ही रहेंगे तभी मैं आपको 1 लाख रुपया देने वाली हूँ, राइट? सो यहाँ पे मैं आपके साथ पैसे देने का जो कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ उसके बदले आई एम टेलिंग यू कि डू नॉट गेट मैरिड टिल योर लास्ट ब्रेथ, आप मरने तक शादी ना करो. तो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली void इन नेचर. इसको void माना जाता है, इसी को इलीगल माना जाता है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा बिकॉज दिस इज void इन नेचर. बिकॉज इसी का कोई लीगल इम्प्लीकेबिलिटी ही नहीं है एंड दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज इज void इन नेचर. Then coming to section 28, it speaks about agreement in restraint of the trade is void in nature. That means every citizen of the India is allowed to carry any kind of the business in any part of the country. That means if I am a citizen of the India, I have my right to carry my business in any part of the India. It might be Delhi, it might be Mumbai, it might be Odisha, it might be Maharashtra. Any part of the country I am allowed to carry my business, except that is not a tribal area. क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से जो कि ट्राइबल लोग हैं उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर द एसटी एक्ट, जिनको ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाता है. तो ट्राइबल लोगों के अलावा इंडिया का कोई भी रीजन में अगर ट्रेड करने से मेरे को कोई भी रोक रहा है, देन दोज काइंड ऑफ द एग्रीमेंट और दोज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is restraining me from carrying out any kind of the trade is void in nature. That is explained under section 27 of the Indian Contract Act, and it speaks about agreement in restraint of the trade is void in nature. So when we are talking about agreement restriction of the trade, I would give you one more example. For example, I am telling you कि मान लो you are having the business of the utensils of the ship. शिप का जो यूटेंसिल्स है, लाइक शिप का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका उसी चीज का बिजनेस है, राइट? तो यू आर कैरिंग योर बिजनेस इन ऑल ओवर द इंडिया, बट मेरा भी वही सेम चीज का बिजनेस है. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम बिजनेस ऑफ द शिप यूटेंसिल्स एंड आई एम कैरिंग द बिजनेस एट द लोकेशन ऑफ द दिल्ली. मैं दिल्ली में अपना बिजनेस कर रही हूँ. तो मैं आपको आके बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू पे यू 5 crore of the rupees if you are not expanding your business into the region of the Delhi. क्योंकि मेरे को पता है कि you are a renowned brand in the ship utensils. आपका जो कंपनी है शिप यूटेंसिल्स के लिए वो बहुत ब्रांडेड कंपनी है और मेरे को पता है कि अगर आप डेली लोकेशन पे आके आपका बिजनेस करते हैं देन आपका फायदा ज्यादा होगा और मेरे को नुकसान होने लगेगा. लोग मुझसे सामान नहीं खरीदेंगे. एंड एज द सिंगल बिजनेस ओनर इन द डेली लोकेशन आई एम अर्निंग टू मच. तो मैंने आपको ये बोला कि आप अपना बिजनेस कीजिए, बट आप क्या कीजिए ना, हमारा ये जो डेली का लोकेशन है ना, आप वहां पे अपना कोई भी शिप का शॉप मत लगाइए. अगर आप डेली लोकेशन पे बिजनेस नहीं करते हैं देन आई एम गोइंग टू पे यू 5 crore ऑफ द रुपीज. यहाँ पे मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया जहाँ पे मैंने आपको किसी भी तरह का ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, रिस्ट्रेन कर रही हूँ. आई एम प्रोहिबिटिंग यू कि आप ऐसा मत करो, आप इस रीजन पे किसी भी तरह का ट्रेड कैरी नहीं कर सकते. एंड this kind of the contract which is called agreement in restraint of the trade. The agreements which is restraining or restricting a trade is void in nature. So agreement
in restraint of the trade is void in nature. And the third condition we have understood under section 28, which has explained that agreement in restraint of the legal proceeding that is void in nature. That means if I am signing a contract with you that I am going to do this thing for you, or I am going to pay you this much rupees, but if you are not allowed to carry any kind of the legal complaint against me. For example, you are working in my company, you are my employee, right? But what is happening in the circumstances, I am putting a condition of the contractual signature with you that you are going to get promoted if you are not putting any kind of the complaint against the illegal activity of this company. दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपके साथ एम्प्लॉयमेंट का जो भी कंट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज साफ साफ कंट्रैक्ट में लिख रही हूँ कि अगर आप मेरे अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्रमोशन, right? So here, this kind of the agreement is totally legally prohibited, and this kind of the contract is illegal in nature. So any kind of the contract or any kind of the agreement which is restraining, which is prohibiting, which is stopping any kind of the legal proceedings, that is void in nature. Okay, this is explained in section 28 of the Indian Contract Act. So आगे बात करते हैं about the exceptions of this. So basically there are three exceptions when there is the presence of the arbitration clause, and secondly when this is the agreement of a bank or financial institution. So आप मुझे ये बात पूछेंगे कि हमने तो ये बात किया कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग इज void in nature. That means any kind of the legal proceeding जिसको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में प्रोहिबिट किया जाता है, देन उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कि दिस इज द void contract in nature, जो कि अभी हमने समझा. बट अगर मैं ये बात बोलूं कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, certain kind of the agreements in which the legal agreements or the legal action is prohibited. ऐसा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट से जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये क्लैरिफाई किया जाता है कि कंपनी और एनी पर्सन और एनी काइंड ऑफ द लीगल पर्सन, उनके अगेंस्ट हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते फॉर एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिविटी. बट फिर भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सही मानेंगे, फिर भी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे. आप पूछेंगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है. अगर उसी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पे ये लिखा हुआ है कि कोर्ट में नहीं जा सकते, बट आर्बिट्रेशन बोर्ड को तो जा सकते हैं ना. नाउ यू विल आस्क मी आर्बिट्रेशन बोर्ड क्या है? पहले इसको आगे जाने से पहले इसी का तुम पहले अभी तक बताओ कि सेक्शन 27, 28 एंड 29 ये समझ में आया ना? लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड एंड देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग. ये समझ में आया? मुझे इसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो अभी मैं लिख ली हूँ. मैं वो आपसे जब हम लोग का ये मीटिंग होगा इसके बाद, तो मैं वो आपसे उस टाइम में क्लियर कर लूंगी, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ा रहे हो तो मैं उस फ्लो में आ रही हूँ, तो मैं इसलिए ब्रेक नहीं करना चाहती. ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है तो ना, बेसिक हाँ कंसेप्ट हाँ, समझ. समझ में आ रहा है. हाँ हाँ हाँ, वो आ रहा है, बट जो मुझे प्रॉब्लम हुआ है इन सर्टेन सेक्शन वो मैं लिख ली हूँ. मैं आपसे पूछूंगी बात. ठीक है, चलो, हाँ कोई बात नहीं. सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, जो कि अभी हमने बात किया कि अगर हम किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं, अगर किसी तरह का लीगल प्रोसीडिंग को प्रोहिबिट किया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि आप इसी कंपनी के अगेंस्ट ऐसा एक्शन नहीं ले सकते फॉर द इलीगल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल मान लो देयर इज ए कंपनी एट बैंगलोर जो कि अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर रहा है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि अगर
आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, देन तभी आपको एक कंडीशन मानना पड़ेगा कि कंपनी के अगेंस्ट आप आगे जाकर किसी भी तरह का लीगल कंप्लेंट at any kind of the court you cannot file it. So this is the kind of activity which is infringing the human rights, right? Because everybody in this country has the right to life and personal liberty. If I am violating my fundamental right, if I am violating my right to enjoy the legal benefits, if I have the right to equality and liberty, then I should have gained the opportunity to file a complaint against the illegal activity of the company. And if I have been prohibited to do that, then that is itself an illegal action. But we were talking about the exceptions. So, what are the exceptions? The exceptions we can deal in certain matters. For example, take it like I am having my own startup where I have been I have signed certain MOA, memorandum of understanding, with certain of the companies, and all the companies, whoever is getting the agreement, everyone is having their privacy policy. So in my privacy policy, I have mentioned that any kind of the breach of the activity or any kind of the breach of the terms and conditions by my company, that is not enforceable in the court of law. I can show you after the class if you want. I'll show you the sample. यहाँ पे मैंने ये लिखा हूँ कि मेरा कंपनी के अगेंस्ट अगर मेरे कंपनी के द्वारा किसी का भी मानविक अधिकार ख्यून होता है, अगर मेरे हेतु किसी को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तभी उस चीज को लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, तभी उस चीज को लेके आप कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते. बट देर इज एन ऑल्टरनेटिव क्लॉज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे मैं ये बात भी बोलती हूँ कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू उस मैटर को सुलझा सकते हैं. देन यू मे आस्क मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. Except the court of the law, there are certain dispute resolution mechanisms that is called the alternative dispute resolution mechanism, that is mostly considered as an arbitration, conciliation, mediation, negotiation. These four are considered the most effective alternative dispute resolution mechanism, जहाँ पे the courtroom is absent. courtroom का evidence लेना, पुलिस का इंक्वायरी करना, जेल जाना, ये सब इंक्लूड नहीं होता है. बट दैट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज. स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन के बाद देखिए, आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग में क्या होता है, देयर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर एंड द आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्यूट आप और मेरे बीच में हो रहा है, तो आपकी तरफ से भी आर्बिट्रेटर रहेंगे, मेरे तरफ से भी आर्बिट्रेटर रहेंगे. हो सकता है अगर हम दोनों ने मिलके किसी एक आर्बिट्रेटर को चुन रहे हैं, देन वो भी रह सकते हैं. बट ऑलवेज ये बात का ध्यान रहना चाहिए कि आर्बिट्रेटर का नंबर हमेशा ऑड होना चाहिए, इवन नहीं हो सकता. दैट मीन्स द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर माइट बी 1, 3, 5, 7, ऐसा होना चाहिए हमेशा. इट मस्ट बी ऑड इन नंबर. एंड इवन यू द जुडिशियरी सिस्टम, आपने ये भी देखा होगा, आपने सुना होगा 3 जज बेंच होता है, 5 जज बेंच होता है, 7 जज बेंच होता है. कभी आपने सुना है 2 जज बेंच, 4 जज बेंच, 6 जज बेंच? इवन नंबर का बेंच ऑफ द जजेस नहीं होता है, बिकॉज जब भी कोई चीज का डिसीजन आता होता है ना, तभी ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द जजेस हाँ बोलते हैं, माइनॉरिटी ऑफ जजेस ना बोलते हैं, या फिर मेजोरिटी ना बोलते हैं, माइनॉरिटी हाँ बोलते हैं. तो अगर 5 जज बेंच होता है ना, तो 5 में 3 अगर हाँ बोले, 2 अगर ना बोले, तो मेजोरिटी जो बात बोलते हैं उसी बात को ही माना जाता है. अगर इवन हो गया तो इक्वल इक्वल हो जाएगा ना, तभी तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहां पे तो नहीं हो पाएगा. इसीलिए आपका आर्बिट्रेशन बोर्ड हो या फिर आपका कोर्ट का जुडिशियरी सिस्टम, हमेशा नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स और नंबर ऑफ द जजेस इज ऑड इन नेचर. तो क्या हो गया, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया, फिर आर्बिट्रेटर आ जाते हैं,
आप आर्बिट्रेटर के सामने अपना सारा एविडेंस इकट्ठा करते हो, अपना कंप्लेन रखते हो, अपोनेंट पार्टी भी अपना कंप्लेन रखते हैं। जैसे कि कोर्ट में जजमेंट पास होता है, वैसे ही आर्बिट्रेशन बोर्ड में बिना टाइम गवा किए, जैसे कि कोर्ट में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट आता रहता है, बट आर्बिट्रेशन बोर्ड पे क्या होता है ना, इंस्टेंट हियरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेटर यहाँ पे बैठा, मैं गई, मैं अपना सारा प्रॉब्लम बोल दी, उसने आया, उसने अपना सारा प्रॉब्लम बोल दिया आर्बिट्रेटर के सामने, मामला इज गेटिंग ओवर, एंड व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट, द आर्बिट्रेटर गिव्स हिज अवार्ड। जैसे कि द डिसीजन ऑफ द जजेस बाय द कोर्ट इज कॉल्ड द जजमेंट, इन द सेम वे द डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर इन द कोर्ट इज कॉल्ड द अवार्ड। उसी को हम बोलते हैं अवार्ड देना। एंड द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर हैज द इक्वल एनफोर्सिबिलिटी अपॉन द लॉ एज द जजमेंट। जजमेंट का लीगल सिस्टम में, कोर्ट ऑफ लॉ में जितना एनफोर्सेबिलिटी है, उतना एनफोर्सेबिलिटी हैज द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का अवार्ड को भी इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, एंड ब्रीचिंग ऑफ द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर इज ऑल्सो पनिशेबल इन लॉ। सो अगर हम इस सिचुएशन का एनालाइज करें, तभी अगर मैं बोलती हूँ कि इफ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द कंपनी मैटर्स, जहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन आता है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस आहे, यहाँ पे ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है दैट यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट यू कैन गो फॉर द आर्बिट्रेशन बोर्ड, you can go for the ADR mechanism, then that kind of the contract or agreement is valid in nature, because even though the privacy policy or the agreement is restricting or prohibiting the court proceedings, it is encouraging the quick resolution method of the arbitration. That is why this is an exceptional case where even if the court proceeding is prohibited, this is also valid in nature due to the enforceability of the arbitration proceeding. Clear? Then coming to the next part, saving of the contract to refer questions that has been already arisen. Some of the questions which has already been arised. कुछ क्वेश्चन से कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि आप मेरे कंपनी के साथ साइन कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, और आपको पता है कि माय कंपनी इज हैविंग ए लो टर्नओवर, राइट। और मैंने आपको पहले से भी ये चीज का अवेयर कर रही हूँ कि देखो, अगर आप मेरे कंपनी के साथ कोई डील में आ रही हो ना, तभी आपको ये बात का सही अंदाजा होना चाहिए कि आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है, because my company is going at the low turnover, so you might feel some kind of the suffer due to the financial losses. फिर भी आप ओके विद द डिसीजन कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आना चाहती हूँ, तो ठीक है, आप आ गए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैंने आपके साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन किया हुआ ना, मैंने उसी में ये मतलब क्लॉज मेंशन किया कि ये जो टर्नओवर को लेके, as I am suffering from the low turnover, I am suffering myself from the financial losses. अगर मेरे वजह से आपके कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान होती है, then you cannot file a complaint at the court against me. आप इस बात को लेके मेरे अगेंस्ट किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले ही इस बात के आवाज दे चुकी हूँ कि अगर आप आ रहे हैं देन आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, एंड यू वेयर ओके विद द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर। एंड इस कंडीशन पे जब आपका कंपनी का नुकसान हो जाता है एंड तभी आप जाते हैं कि नहीं, अभी तो मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू फाइल ए कंप्लेन इन द कोर्ट नाउ, क्या वो एनफोर्सेबल होगा? द आंसर इज नो। Here in the agreement, I have prohibited you, the agreement, the contract has prohibited you from filing any kind of the legal complaint against my company, and that is totally valid in nature. ये valid है because इस चीज के बारे में पहले ही question of the law, question of the fact आ चुका था, and you are already aware about the fact. Clear? Then exception 3 में आते हैं, when it is the guarantee agreement of a bank or financial institution. Usually बैंक और financial institution पे क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप उनसे लोन लाते हैं, उनसे पैसा लाते हैं, तो आप क्या करते हैं ना, आप टाइम से पहले उसको चुका नहीं पाते हैं,
जब आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपका जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पैसा लाए हैं वो लोगों ने क्या करते हैं, लाइक जिस चीज को बंधक देके, लाइक यू मस्ट नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक से 15 लाख रुपए का लोन ला रही हूँ. सो इन रिटर्न ऑफ द 15 लाख ऑफ द रुपीज आई हैव टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज टू द बैंक. जैसे कि मेरा घर का पेपर, मेरा जमीन का पेपर, कुछ तो उनको देना पड़ेगा ना, एज द प्रूफ कि हाँ मैं पैसा वापस दे दूंगी करके. और अगर मैं पैसा वापस नहीं कर पाती हूँ तो वो चीज उन लोगों के हाथ में चला जाता है. तो फॉर द सेम सिचुएशन, अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कंप्लेन किया जाता है कि चलो ये तो मेरा घर ले गए, ये तो मेरा जमीन ले लिए, तो इज इट वैलिड? नहीं, बिकॉज आपने भी तो उनसे लोन लिया था, आपने भी तो पैसा नहीं चुकाया. तो इस पैसे के बदले उन लोगों ने आपका घर और जमीन जो भी आपने बंधक रखा था उसको ले लिया. तो उसमें गलत क्या है? सो इस चीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट पे, जहाँ पे आप बैंक के साथ और एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पैसा लेने से पहले, फ्रॉम द बिफोर टेकिंग अप द डेप्ट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन कर रही हो जहाँ पे अपने ये बोल रही हो कि ठीक है, अगर मैं अपना पैसा टाइम से नहीं चुका रही होती तो आपने मेरा ये जमीन या ये घर जबरदखल कर लेना, या फिर मेरा घर मुझसे ले लेना, नीलामी कर लेना उस प्रॉपर्टी का. तो यहाँ पे इन दैट केस, after this agreement, you have no right to claim, or you don't have any right to file a complaint in the court against that particular bank or financial institution, even though the legal proceeding against that institution is prohibited in the agreement. Still that agreement is legally enforceable in nature. क्या बोला इस यहाँ पे कि इवन दो यहाँ पे उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट लीगल कंप्लेंट फाइल करने को उस एग्रीमेंट पे प्रोहिबिट किया गया है, फिर भी उस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा ड्यू टू द डेप्ट नेचर. यहाँ पे आपने लोन लिया है, लोन के बदले आप अपने घर या जमीन या प्रॉपर्टी बेच रहे हो बैंक को. तो यहाँ पे किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग अगर प्रोहिबिट होता है, दैट इज कम्प्लीटली वैलिड इन नेचर. So this is about section 27, 28 and 26, 26, 27 and 28. And now coming to the section 29, if any kind of the agreement is uncertain, that is totally void in nature, and this is easy, आप बाद में खुद ही समझ जाओगे. So coming back to section 31, we have understood about the contingent contract. When I told you contingent contract means there is the probability of happening or non happening of the event. That means event हो भी सकता है, event ना भी हो सकता है. The contract is actually contingent in nature. There is the confliction कि matter is going to happen or not going to happen. You are not sure about that. Got it? Then coming to the next point, enforcement of the contract is contingent on event happening. That means when there is the happening of certain event, then the contract is going to be enforced. Okay. I'm giving you an example of this. Okay. Okay. See, for example, I am having a white horse. Okay. So you want to buy that white horse from me? मतलब I'm telling you the example of section 32. और बुक में ही देख लो, ये वाला एग्जाम्पल है. मान लो कि मेरे पास एक व्हाइट कलर का एक हॉर्स है, जो हॉर्स आप मुझसे खरीदना चाहते हैं. बट आप मेरे पास हॉर्स खरीदने के लिए जब आए, तब से पहले मेरे पास दूसरा एक इंसान, मान लो उसी का नाम बी है, बी आ चुका है. उसने मेरे को बोला कि उसी को भी वही व्हाइट हॉर्स चाहिए. मैंने क्या किया, उसी के साथ डील डन कर दिया है कि हाँ ठीक है, मैं आपको वो घोड़ा बेच दूंगी. बट आप जब मेरे पास आते हो तो मैंने आपको बोला देखो जी, मेरे को आपको घोड़े बेचने में कोई दिक्कत नहीं. बट आपके आने से पहले बी ने ऑलरेडी वो बुकिंग करके रखा है. अगर बी ने वो घोड़ा नहीं लेता है, देन आई एम गोइंग टू सेल यू द हॉर्स. अगर बी ने घोड़ा नहीं लेगा, या फिर इफ आई एम नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स टू बी, देन आई एम गोइंग टू सेल द हॉर्स टू यू. मुझे कोई दिक्कत नहीं बेचने का. तो यहाँ पे द हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज कॉन्टिजेंट इन नेचर, मतलब आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ
that is dependent upon the third party, that is B. B अगर आपसे घोड़ा खरीदता है, then we are not going to enter into the contract. आप और मेरे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि B तो घोड़ा ले गया. अगर B ने घोड़ा नहीं लेता है, if B is not buying the horse, then I am going to sell you the horse. आप मुझसे घोड़े खरीदने वाले हो. Then there is the existing contract between you and me. So basically, when there is the when there is the presence of the contract, which is based upon the happening of certain future event, those kind of the contract is also called the contingent contract in nature. मान लो मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि अगर आज बारिश हुआ, then मैं आपको 10,000 रुपया दूंगी. यहाँ पे आपका मुझसे पैसा पाना और ना पाना किसके ऊपर डिपेंड करता है? बारिश होने के ऊपर डिपेंड करता है. अगर बारिश हो जाता है, then you are going to get 10,000 rupees from me. अगर बारिश नहीं होता है तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगी. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर, जहाँ पे द happening of the contract is totally based upon the happening of certain events, and those kind of the contract is called contingent contract in nature. The third kind of the contract क्या बोले हम? About the not happening of an event. जैसे कि मान लो I am a shipper, okay? So what I am doing, I am putting an agreement with you कि अगर मेरा शिप 1 साल के अंदर समंदर से वापस नहीं आता है, एक सिचुएशन बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई एम्प्लॉय, I am having my ship, okay? And in my ship you want to transact some hazardous instruments. कुछ ऐसा hazardous चीजें हैं जो कि मेरे शिप को नुकसान पहुंचा सकता है. तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे शिप में वो सारा सामान बाहर भेजवाने के लिए चाहते हैं. तो मैंने बोला कि उस चीज से ना मेरे शिप को नुकसान है, राइट? तो मतलब अगर नुकसान है तो मैं क्यों अपना शिप दूंगी आपको? तो आपने बोला कि ठीक है मैम, आप अपना शिप दे दीजिए. अगर शिप सही सलामत वापस जा जाता है तो ठीक है, आप अपना पैसा ले लेना. अगर शिप सही सलामत वापस नहीं आता है, शिप समंदर में डूब जाता है या शिप को किसी भी तरह का नुकसान होता है, then I am going to pay you 50 lakh of the rupees. मैं आपको 50 लाख का कंपेंसेशन दूंगा. तो आप और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट हो गया. मान लो यहाँ पे जो 50 लाख आप मुझे देना, that is dependent upon the non happening of the event. नॉन हैपनिंग क्या हुआ? अगर शिप समंदर से वापस नहीं आता है तब आप मुझे 50 लाख रुपए देंगे. मान लो शिप वापस आ गया, तो यहाँ पे आप और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था 50 लाख का, वो हुआ क्या? नहीं हुआ. मान लो शिप वापस नहीं आया, then you are going to pay me the 50 lakh of the rupees. So यहाँ पे the nature of the contract is totally based upon the non happening of the event. यहाँ पे अगर इवेंट नहीं होता है, अगर आप मुझसे पैसा, अगर शिप समंदर से सही सलामत वापस नहीं आता है, then only I am going to pay you the money, and that is called the enforcement of the contract when the event is non-happening, or enforcement of the contract due to the non-happening of the event. Okay, so this is about the section 33. सेक्शन 31 में क्या बोला? व्हाट इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्क्राइब किया. सेक्शन 32 में अबाउट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इवेंट का हैपनिंग होने से हाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स enforced or how the contract becomes enforceable in nature, that comes to place. And according to section 33, due to the non-happening of the event, due to the non-happening of the terms of the contract, if the contract is occurring, that is indicated. Okay, so section 32 speaks about the happening of the event and section 33 speaks about the non-happening of the event, and both of these indicates
about the occurrence of the contract due to the happening or non-happening of the event. Okay. So till this, like section 33, Isika, are you clear? Okay, so now we are going to cover more 3 sections, section 34, 35, 36. Okay. Section 34, it speaks about the, when the event on which the contract contains impossible the future conduct. Okay, I got it now. The future conduct of a living person that is described upon section 34 of the Indian Contract Act. And what it exactly speaks. Section 34 speaks the happening of an event, and accordingly, after the happening of the event, the contract is getting done. Okay, just let me give you an example through this. आपको समझ में आ जाएगा. मान लो there is the parents, जो for example there is a father of a child, जबकि the father is suffering from cancer, जबकि फादर को पता है कि वो ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेटा या छोटा बेटा या बेटी है उनके नाम पे ना सारा प्रॉपर्टी लगा दिया. मतलब प्रॉपर्टी का जो आधा हिस्सा 50% हिस्सा है वो बच्चे के नाम पे कर दिया. एंड द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन विद द नेम ऑफ द चाइल्ड वाज अराउंड 2 years old. उसका बस 2 साल हुआ है, बच्चा है. उसी टाइम उसी के नाम पे उसी का बाप ने उसी का आधा प्रॉपर्टी दे दिया. फिर द फादर हैज बीन डाइड एंड इन द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ये मेंशन हुआ है कि अगर बच्चा 18 साल से जब बड़ा हो जाएगा देन ही इज गोइंग टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे द हैपनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे फादर ने बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करके गया है वो कब एनफोर्सिबल होगा? द फ्यूचर हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट ऑफ ए लिविंग पर्सन. इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन व्हिच ए contract is contingent, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should act within the definite time or otherwise than the future contingencies. अगर यहाँ पे impossibility क्या आ जाता है? मान लीजिए 18 साल से पहले बच्चा का मौत हो गया, बिकॉज वी ऑलवेज नो द लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी किसी का भी मौत हो सकता है. 18 साल से पहले अगर बच्चा का मौत हो जाता है देन इज दैट चाइल्ड इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? नहीं, बिकॉज वो तो जिंदा है ही नहीं, तभी वो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा. अगर वो 18 साल तक जिंदा रहती है तो 18 साल के बाद प्रॉपर्टी किसका हुआ? उसके नाम पे हो जाएगा. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का उसके नाम पे है ना होना ना होना इज डिपेंड्स अपॉन हिज लाइफ टाइम. वो 18 साल के बाद जिंदा रहता है या नहीं रहता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा एग्जाम्पल ले लो जो कि तुम्हारा बेयर एक्ट में भी दिया गया है. देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी. ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि आई एम गोइंग टू पे यू 5 लाख ऑफ द रुपीज, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा अगर आप सी से शादी करेंगे. बी इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल. ए इज ए पर्सन who is dealing a contract with B that अगर आप C से शादी कर रहे हैं then I am going to pay you 5 lakh of the rupees. बट यहाँ पे मान लीजिए C is married. C का ऑलरेडी शादी हो चुका है, किसके साथ? D के साथ शादी हो चुका है. तो यहाँ पे C जो लड़की है वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है. तो यहाँ पे B क्या C से दोबारा शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट एक बार शादी हो गया तो दूसरी शादी को नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पे सी बी से दूसरी शादी नहीं कर सकती या फिर बी भी सी से शादी नहीं कर सकता. बट ऑन सर्टन सिचुएशंस, मान लीजिए डी द हस्बैंड ऑफ सी इज डाइड, डी का मौत हो गया, तो वहां पे अगर बी चाहे सी से शादी कर सकता है. सो यहाँ पे जो कंडीशन इम्प्लाई किया गया है ना कि 5 लाख रुपया तभी मिलेगा बी को जब वो सी से शादी करेगा. बट सी शादीशुदा है ऑलरेडी. बट सी का जो पति है डी, अगर डी का कभी मौत हो जाता है देन सी बन जाता है विडो और वो फिर से किस शादी कर सकता है? बी से शादी कर सकता है.
तो यहाँ पे बी का सी से शादी करना अभी सिचुएशन के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है बिकॉज सी इज मैरिड, बट कंसर्निंग अबाउट द फ्यूचर अकरेंस ऑफ द इवेंट, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि डी का मौत हो जाता है, सी का पति का मौत हो जाता है, तभी बी कैन मैरी सी, right? So in that circumstances, the agreement or the contract becomes implicable and it becomes valid. Okay. So this is impossible as per the current situation, but it will become possible after the happening of the future event. जैसे कि मैंने बताया 2 साल के बच्चे के नाम अभी जो प्रॉपर्टी हुआ है, अभी इम्पॉसिबल है कि 2 साल का बच्चा जब तक मेजोरिटी उसी का ना हो जाए तब तक वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, बट it will be possible at the future time when the property becomes at his name when he attains the age of the majority. अगर 18 साल तक वो सही सलामत जिंदा रहता है तो 18 साल के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगा. Got it? So this is about section 34. Section 35, it speaks the contract becomes void which are contingent on happening of the specified event within the fixed time. That means the happening of the specified event upon the fixed time. अगर ऐसा नहीं होता है then the contract becomes void. Okay. मान लो there is the contract between you and me. Okay, and that is called the contingent contract. Okay. I am a shipper, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था. I have my ship. मैं अपना शिप को किसी सामान के सिलसिले में बाहर भेजा हूँ. ओके. तो आप मेरे साथ ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जहाँ पे ये लिखा जाता है अगर 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आता then I am going to pay you 5 crore of the rupees. तो यहाँ पे अगर शिप 1 साल के अंदर वापस आ जाता है then I am not going to liable to gain the rupees of the 5 crore. बट अगर 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आता है अगर 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाता है then I am not going to get the money, and अगर 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आता है then I am going to get the money. तो यहाँ पे मेरा आपसे पैसा पाना 5 करोड़ रुपया पाना इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द टाइम पीरियड दैट इज 1 ईयर. 1 साल के अंदर शिप अगर नहीं आता है तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल इन नेचर होगा. सो दिस इज अबाउट द सेक्शन 35. एंड सेक्शन 36 इट स्पीक्स अबाउट एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज void, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इन नेचर. 36 का एक एग्जाम्पल ले लो. मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि आप चाहो एक इंसान है बी से शादी करो तभी मैं आपको मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा सब कुछ आपके नाम पे कर दूंगी. बट आप जब जाके उस सी के घर जाते हो जिससे आपका शादी करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता चलता है कि मैं जिससे शादी करने को आपको बोल रही हूँ एंड आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की हूँ ना कि आप अगर बी के साथ शादी करोगे देन आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज. एक्चुअली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज डेड. मतलब मैं आपको बी से शादी करने के लिए बोल रही हूँ बट बी इज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट. बी जिंदा है ही नहीं. तो क्या मैं एक मरा हुआ इंसान से शादी कर सकती हूँ? द आंसर इज नो. तो यहाँ पे आप मेरे साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हो कि अगर मैं बी से शादी करूं तभी आप मेरे को अपना घर और प्रॉपर्टी देने वाले हो, क्या ये एग्रीमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता उसी को लेके आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं अगर उससे शादी करूं तो मेरे को पैसा मिलेगा. वो इंसान तो जिंदा ही है नहीं तो मैं उससे शादी कैसे करूं? तो दिस काइंड ऑफ द एग्रीमेंट इज टोटली void इन नेचर, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कर लो तो भी. सो दिस इज अबाउट द contingent contract and it has been explained till section 36 of the Indian Contract Act. So I think the time is also over. So in the next class we are going to continue from section 37 onwards.
एंड नेक्स्ट क्लास पे मैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का फिर से भी एक थोड़ा सा रिकैप करवा दूंगी। अगर कोई भी हम्म, तरह का डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अभी भी पूछ सकते हो।